اللہ پاک کے نام ہے اس میں طاقتور، اور بہت طاقتور اللہ کے نام ہے اس نقش میں، بہت نام ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کو خواب میں کچھ فرشتے نظر آئے، عرض کیا کہ آپ کو ساری کائنات میں افضل ترین آپ کیا بیٹا ہونے والا ہے، اور جب وہ بیٹا آئے تو اس کا نام محمد رکھیں گے۔ اور پھر سونے کا ایک طباق تھا سونے کا، اس میں ایک تعویذ پیش کیا کہ جب بیٹا تو اس کے گلے میں یہ تعویذ ڈال دے، اور وہ تعویذ پھر صدیوں سے ہمیں ملا، صدیوں سے ہمیں ملا۔ پھر ایک چیز اور یاد رکھیے گا، جتنی بھی بابرکت چیزیں ہیں، یہ ایک میں آپ نقطہ اور راز بتا رہا ہوں، کوئی بابرکت چیز ہے، بالفرض کوئی بابرکت چیز ہے۔ اور میں نے پچھلے دفعہ ایک بات کی تھی میرے درس سننے والوں کو، میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بندے نے کہا میں قرآن اٹھاؤں گا، انہوں نے کہا نہ، میں جو قرآن لاؤں گا وہ اٹھاؤ۔ وہ لائے قرآن، وہ جو بہت زیادہ پڑھا ہوا تھا اور پڑھا جاتا تھا، وہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، قرآن تو ایک ہی ہے، سچا قرآن ہے۔ لیکن کہا نہیں، جو مسلسل پڑھا جا رہا تھا اس کو اٹھا۔ کہا کہ جب اس قرآن کو اٹھایا تو کہا پھر تیسرے دن ہم اس کا جنازہ پڑھ رہے تھے، تیسرے دن۔ میں نے آپ کو شاید پچھلی جمعرات میں محفل میں نے عرض کیا، یاد ہوگا آپ کو۔ اسی طرح جس چیز کو مسلسل صدیوں سے مخلوق خدا اس پہ عمل کر رہی ہے، اس عمل کو مسلسل ہر نیک بندے کی توجہ اس میں شامل ہو جاتی۔ اس نقش کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کا امر، پھر جبریل، پھر میرے آقا حضور، پھر آل رسول، پھر اصحاب رسول، اور پھر تو صدیوں سے بڑی بڑی ہستیاں اس نقش کو مسلسل وہ توجہات اس میں شامل ہو جاتی، اور اس توجہات کی خیر اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور اس توجہات کی برکات اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی عام بندہ بھی، آج کا کمزور سے کمزور امتی بھی اس نقش کو کچھ عرصہ لکھ لے اور اس کی تاثیر پالے، تو اس کو وہ 14 صدیوں پرانی تاثیر مل جاتی ہے۔ بڑی بڑی ہستیوں کی، دنیا کے پتہ نہیں کس کونے میں، کہاں کس اللہ کے نیک بندے نے یہ نقش لکھا تھا، کس اللہ کے نیک بندے نے یہ عمل کیا تھا، اور کس اللہ کے نیک بندے نے اس کی تاثیر پائی لی، اور کہاں سے کہاں اس کی تاثیر اور طاقت پہنچی۔ میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ ہو، یہ نقش وہ ہے جس کے ساتھ نسبت میرے حضور کی ہے۔ اتنی نسبت بھی کافی نہیں، شافی بھی ہے اور بہت طاقتور بھی ہے، میرے حضور کی ہے۔ اس سے بڑی کوئی نسبت کون سی ہو سکتی، اور اس سے بڑی تاثیر اور طاقت کون سی ہو سکتی، اور اس سے بڑا کمال کون سا ہو سکتا؟ یہ نسبت وہ نسبت ہے، یہ تاثیر وہ تاثیر ہے۔ زندگی میں نا کبھی کسی علم کو نہ چھپائیں، علم چھپانے سے کبھی نہیں بڑھتا۔ دو چیزیں ہیں جو دینے سے بڑھتی ہیں، ایک مال اور ایک علم، دینے سے بڑھتی ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو جتنا عام کریں گے اتنا اللہ اس کو بڑھاتا جائے گا، اور اللہ اتنا بڑھائے گا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کہتا ہے میں بڑھاتا ہوں جتنا میری طاقت، میری منشا ہے، اور واللہ واسع علیم، میری وسعت کو بندو تم نہیں جانتے کہ میری وسعت کتنی ہے، کتنی وسعت۔ اور میں قیامت کے دن جب سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے، اور حتیٰ کہ وہ لوگ جو اپنی خطاؤں کی وجہ سے جہنم میں گئے تھے وہ بھی جنت میں واپس آ جائیں گے، تو اللہ پاک فرمائیں گے اللہ ازل سے لے کر ابد تک جتنے انسان اور جتنے جنات ہیں
वो सब को हमने जन्नत की बस्तियों में बसा लिया, पर अभी तक जन्नत तो एक हिस्सा भी नहीं भरा, वह जन्नत तो खाली पड़ी हुई है। इसलिए मैं किसी के बारे में कह सकते हैं कि ये काफिर है, ये जहन्नमी है, कैसे कह सकते हैं? अल्लाह की जन्नत तो इतनी है कि सारी अजल और अबद के इंसान अरबों 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 अरबों, और जिन्नात तो पता नहीं कितने खरबों खरबों, मेरी हिंसे और गिनतियां ही खत्म हो जाती हैं। वो सारे इंसान सब सारे जमा कर दिए जाएं, वो सारे इंसान जमा कर दिए जाएं, सारे इंसान जमा कर दिए जाएं और सारे जमा करके जन्नत में भेज दिए, सारे जिन्नात इंसान। मैं जन्नत तो का अभी एक हिस्सा नहीं भरा। तो अल्लाह पाक क्या करेंगे? अल्लाह पाक एक मखलूक पैदा करेंगे और मखलूक को पैदा करके अल्लाह पाक उसके जरिए जन्नत को बसाएंगे। एक मखलूक पैदा करेंगे और उसके जरिए अल्लाह पाक जन्नत को आबाद और शाद करेंगे, जन्नत को बसाएंगे। इसलिए इस नक्श को छुपाए नहीं। मुझे अभी पैगाम आना शुरू हो गया कि उस दिन उस बंदे का उन्होंने बताया कि वो कहता है कि मेरे पास ये जन्नती नक्श है, अपकरी के पीर साहब ने दिया है, मैंने उनसे जो है ये खास इसकी तासीर ली है, आप 15,000 रुपए दे दें तो मैं आपको दो दूंगा। मैंने 15,000 किस चीज के हैं? तो मैंने तो सारी इंसानियत को, पूरी दुनिया को ये नक्श बकायदा, इसको अल्फाज, तस्हीह, किताबों के हवाले, इसके मुख्तसर फायदे, इसके मुख्तसर नफ़े, वो सारे के सारे मैंने जमा करके अल्लाह की मखलूक इंसानियत के लिए आम कर दी है, आम कर दी है। जिन साहब ने मुझसे बात की ना मुझे, जो मैं जहां ताजियत फौतगी की करने गया, तो वो कहने लगे कि अगर दम दें, दम करें तो उसके पैसे जरूर लें, अगर पैसे नहीं होंगे, नहीं लेंगे तो आपको तकलीफ होगी। तो पैसे अगर लेने भी हैं तो लेके फिर उसको हदिया कर दें, अगर लेने भी हैं तो लेके उसको हदिया कर दें। इसको छुपाए नहीं, इसको फैलाएं। आज मैंने एक चीज बताई है, मैं आज 2-3 चीजें मुसलसल बदल बदल के बयान कर रहा हूं। एक लाहौती निजाम, गैबी निजाम, एक सूरत इखलास, एक ये नक्श। अब महसूस करें मैं इन तीनों मजमूनों में चल रहा हूं। एक तो मैंने रोंगटे खड़े कर देने वाला एक अमल दिया, रोंगटे खड़े कर देने वाला अमल, और ये वो मैंने अमल दिया है, मैंने इसका बकायदा हवाला दिया है। बड़ी बड़ी नेक हस्तियां, औलिया, गारों में, कुओं में, जंगलों में, वीरानों में, जो कहते हैं जी बाबा जी ने यहां चिल्ला किया, जहां वो और अमल करते थे, उनमें ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला अमल भी है कि एक बार सूरत इखलास पढ़ें और अल्लाहु समद, इसको दोहराएं 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 दोहराएं, और इतना ज्यादा दोहराएं, इतना ज्यादा दोहराएं कि इसकी ताकत और तासीर बढ़ती चली जाए। रुए रुए में, अंग अंग में, रग रग में, जिस्म के हिस्से में ये उतर जाए। आप कुछ ही अरसे के बाद, कुछ ही दिनों के बाद खुद बोलेंगे कि ये है क्या, और इसकी तासीर क्या है, और इसका कमाल क्या है। खुद बोलेंगे, वो अंदर खुद बोलेंगे कि क्या हो गया है। मैं तो आज तक सोच नहीं सकता था कि इतना मेरा दिल जल्दी बोलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह वालों के यहां एक इस्तिलाह है, कल्ब जारी होना, कि उसका कल्ब जारी हो गया, दिल चल पड़ा। मेरी बात सुन रहे? दिल चल पड़ा। वो जो दिल चलना कहते हैं, कल्ब जारी होना कहते हैं, उसके लिए बहुत मशकें की जाती हैं। अल्लाह के नेक बंदों ने बहुत मुजाहिदे, बहुत मशकें, बहुत मुजाहिदे, बहुत मशकें की, लेकिन बहुत मुजाहिदे और बहुत मशकें की, लेकिन
आज की उम्मत कमजोर है, ज़ईफ है। इन कमजोर लोगों के लिए अल्लाह ने ये एक रास्ता रखा है, और वो रास्ता क्या है कि छोटे छोटे ऐसे अमल कर ले जिससे कल्ब जारी हो जाए, दिल जारी हो जाए। अच्छा, जिसका कल्ब जारी होगा पर होगा क्या? ये एक अनोखी चीज है। होगा क्या? जिसका कल्ब जारी होगा क्या? उसके बारे में बता दूं। जिसका कल्ब जारी हो जाएगा, जो भी जिक्र करेगा, जो भी तस्बीह करेगा, जो भी नमाज पढ़ेगा, जो भी अमल करेगा, वो दिल की गहराइयों से करेगा, अंदर से करेगा, और अल्लाह की तवज्जो दिल पे है, दिल पे है, दिल पे है। दिल असल अल्लाह के यहां दिल है। सारी दुनिया को धोखा दे सकते हैं, अल्लाह को नहीं दे सकते, क्योंकि अल्लाह की नजर बंदे के दिल पे है। अल्लाह की नजर बंदे के दिल पे है। और जब कल्ब जारी हो जाएगा, कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि इसके कल्ब के अंदर इतने अनवारात बरकत हैं, इसके दिल के अंदर इतनी तासीर है, इसके अंदर की इतनी रूहानियत इसमें मौजूद है। लोग अंदाजे लगाएंगे। क्यों? याद रखिएगा, जब अल्लाह के नाम की बरकतें और तवज्जुहात मिल जाती हैं, फिर इंसान अपने उस नूर को छुपाता है। ये जो हिरन होते हैं ना, हिरन, इसको आहोए मुश्की कहते हैं, और इसको गज़ाल भी कहते हैं। ये उर्दू अदब में ये जो गजल है, हिरन को जब तीर मारते हैं, उसकी जो दर्दनाक आवाज निकलती है, उसको गजल कहते हैं। तीर मारते हैं ना, उसके अंदर से एक दर्दनाक आवाज निकलती है, उसको गजल कहते हैं। जब एक खास हिरन होता है बर्फ में, उसके अंदर मौसम में उसकी नाफ खून से भर जाती है, उसे पता चल जाता है कि अब मेरे अंदर मुश्क आ गया है। अब वो खड़े खड़े सोता है, हर तरफ उसकी नजर होती कि शिकारी आएंगे, और शिकारी भी उसके शिकार के पीछे होते हैं। हर तरफ उसकी चौकन्ना होता है, कहीं बैठता नहीं। उसे एहसास हो जाता है कि मेरे अंदर अब मुश्क है, और अब मुझे शिकारी आके मारेंगे, कत्ल करेंगे। और शिकारी क्या करते हैं? जब उसका निशाना लगाते हैं, फौरन उनके पास एक रस्सी होती है, उसकी नाफ को उस रस्सी से बांध देते हैं। क्यों? उसके मरते ही वो खुश्क खून वापस उसके पेट में चला जाता है। वो जब रस्सी से बांध देते हैं, वो एक नाफा होता है, उसको नाफा कहते हैं। और आज भी वो नाफा 2-3-4 लाख रुपए तोला है, लाखों रुपए तोला है आज भी। जब कल्ब जारी होगा, मैंने कहा ना, रोंगटे खड़े कर देने वाला अमल, जब कल्ब जारी होगा और अब अल्लाह पाक जल्ला शान हो अता फरमाएंगे, तो फिर इसको हर फर्द फिर छुपाएगा, और फिर कोई खास बंदे हैं जिनको अता हो जाएगी। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज दिल्ली के शहंशाह, आपके दौर में एक दुर्वेश थे, उन पे गुर्बत और फाके आ गए, तंगदस्ती आ गई। तो एक लौंडी को कहा कि मैं तुझे अगर बेच दूं, तू भी फाकों में रहती है, मैं भी फाकों में रहता हूं, चलो तू ऐसी जगह जाएगी जहां तुझे 2 वक्त खाने को अच्छा मिल जाएगा, और तेरे जो पैसे आएंगे कुछ दिन मेरे भी अच्छे गुजर जाएंगे। तो लौंडी कहने लगी, हजरत आपको हक है, पर ऐसी जगह बेचें जहां मेरी इबादत में कोई खलल न डाले, मेरी इबादत में कोई खलल न डाले। तो सोच सोच के फरमाने लगे, इस दौर में तो एक हस्ती है हजरत निजामुद्दीन औलिया, इससे बड़ी हस्ती तो मैंने कोई नहीं। उन्होंने कहा वो तो अल्लाह वाले हैं ही, अगर उन्होंने कहा वो नहीं है तो फिर कौन है? तो लौंडी कहने लगी, मुझे उन पे 3 एतराज हैं, 3 सवाल हैं जो आज तक मुझे जवाब नहीं मिले। सबसे पहले उनको मैंने कभी किसी तकलीफ में नहीं देखा, हमेशा हशाश बशाश देखा। दूसरा, मैंने उनको लंगर से खाना खाते देखा है। लंगर तो फुकरा मसाकीन का हक होता है,
और ये फकीर तो हलाल खाता है। दरवेश कहते हैं गोश्त में तोड़ है, दाल में जोड़ है। गोश्त में तोड़ है, दाल में जोड़ है। ये बोटी मेरे हाथ नहीं आई, ये उसके हाथ आ गई। कितना खुशकिस्मत होगा, दस्तरखान पे बैठा, बोटियां उसके आगे कर रहा होगा, बाकी अपने आगे कर। वो झगड़ा याद है या फिर खरबूजे वाला झगड़ा? उन्हें हाथ पकड़ लिया, उन्हें कहा इतनी तेजी से खाता था खरबूजा, कमाल है। ये मैं अचानक आते आते खरबूजा जहन में आ गया कि खरबूजों की मौसम है, बेर की मौसम है। मैंने बेर के फायदे बताए थे, कमाल फायदे हैं। इस तरह खरबूजे के फायदे कि खरबूजा दिल की बीमारियां, गुर्दे की बीमारियां, जिगर की बीमारियां, मैदे की बीमारियां। एक दाना ने एक बात कही है, कहा ये आते हैं ना, इसके अंदर आते हैं, बस जिस तरह इसके अंदर आते हैं इस तरह वो शख्स जिसमें आते होंगी और आंतों के इर्द गिर्द जितना भी होगी, आपकी आंतें हैं ना, इधर आपके ये जिगर है और ये गुर्दे हैं, ये तिल्ली है और फिर लबलबा है, उस पे मसाना और वो पित्ता उसके साथ, ये आंतों के इर्द गिर्द सारा ये निजाम है। इन सब निजाम को खरबूजा ठीक कर देता है। सस्ता, बिल्कुल सस्ता। अच्छा, फीका है या मीठा, इसके जायके ना देखे, खरबूजा खरबूजा है, खरबूजा खरबूजा है। छोटी छोटी चीजों को के फायदे, छोटी छोटी चीजों के नफे अपनी जिंदगी में शामिल करते जाएं, ठीक है ना। जिंदगी में जिस तरह मैंने अर्ज किया कि हजरत नक्श उमर है, इसके बड़े फायदे हैं। अमीर मोमिन उमर रज़ी अल्लाह का नक्श दरिया नील का नक्श है, उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। और नक्श यारे गार यारे मजार है, ये किताब आपके पास है, 70 दुख एक तावीज। और इसी तरह ये मीठे चावल जो आपके पास है, जिक्र खास जब भी होगा याद रखिएगा, मेरी बात जरा गौर से सुने, फिर सुने। ये जो जिक्र खास है इसको हल्का ना लेना, इसकी अहमियत दिल में हो, अजमत वकार दिल में हो। पूरी सदियों 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 में जब भी कहीं दुख और गम आया, जब भी कहीं परेशानी बादशाहों पे या रियाया पे, फकीरों पे या गरीबों पे, अमीरों पे या मालदारों पे, जब भी इस जिक्र खास खत्म खाजगान को मिल के पढ़ा, यकीन से पढ़ा, दर्द से पढ़ा, अल्लाह पाक का निजाम अचानक ऐसे पलटा कि लोगों की आंखें हैरान हो गई। आप जितने भी अपने गम दुख, जितनी भी परेशानियां, नाकामियां, हालात लाए हैं, इस जिक्र खास के अंदर अपनी सारी तवज्जोहात को जमा कर लिया करें, सारे यकीन को जमा कर लिया करें, सारे दर्द को जमा कर लिया करें, सारे एहसास को जमा कर लिया करें इस जिक्र खास में, और बहुत तवज्जो से डूब के पढ़ा करें। और फिर इस चावल पे दम कर दिया करें। जो भी चावल खाता है वो नूरी लुक़मे बनते हैं, बीमारियां, दुख, परेशानियां खत्म होती हैं। ये कोई छोटा अमल नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत 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 बाबरकत अमल है। रमजान की आमद है, 2-1 दिनों तक रमजान आने वाला है। जो रमजान का कयाम तस्बीह खाने में, अल्लाह उसकी नस्लों को फक्र, गुर्बत, परेशानियों से बचाते हैं और हालात बेहतरीन हो जाते हैं। ये साल से रमजान गुजारने वालों ने बताया है, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई गम, कोई दुख, कोई नाकामी, रमजान अल्हम्दुलिल्लाह वो बताता है कि रमजान से जिस तरह 12 लड्डू का अमल है, बहुत लोग आके लड्डू रखते हैं, एक लड्डू मुराद का खुद लेते हैं, 11 रख के चले जाते हैं। जो लेता है वो नियत करता है कि अल्लाह मेरी मुराद पूरी करेगा, उसकी बहुत तासीर है और अल्लाह उसकी मुराद पूरी करता है। ये चीजें करते रहा करें, इन चीजों में बड़ी तासीर है, इन चीजों में बड़ी ताकत है और इनमें बहुत ज्यादा कमाल है, बहुत ज्यादा। ये चीजें भी वही हैं, अनदेखे सौदे हैं। लड्डू का अमल अनदेखा सौदा है, अनदेखे निजाम है। नक्श का अमल अनदेखे सौदे, अनदेखे निजाम है। ये जरूर तवज्जो करते रहा करें। और भाई बैठे बैठे तकसीम करें, खड़े होके तकसीम ना करें। बैठ जाएं अल्लाह वाले, बैठे बैठे एक दूसरे को देते जाएं अल्लाह वाले, खड़े होके नहीं भाई। एक दूसरे को पकड़ाते जाएं भाई, पकड़ा दें, बस ऐसे बैठे बैठे एक दूसरे को पकड़ा दें, बैठे बैठे। और दूसरी गुजारिश ये है कि अबकरी तस्बीह खाने का चंदा
वो बहुत ज्यादा उस पर तवज्जो करें। मेरी नस्लों के सारे निजाम का तस्वर करके हामीम ला युनसारून, सख्त तवज्जो ध्यान से, या हफीज या सलाम, हिफाजत, किफायत, बरकत, आफियत के लिए, हर फितनों को खत्म करने के लिए बहुत तवज्जो से। और सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 11 बार सुबह शाम तस्बीह खाने को दाएं बाएं वुसअत देने के लिए। और सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत, ये मैंने इजाजत खसूसी इसकी दी हुई है। और हर नमाज के बाद एक बार सूरत और तकासुर मेरी नस्लों का तस्वर करके, इसका तस्वर करके पढ़ें। रूहानी जानिसारों के अगले अमल का आगाज हो चुका है। उसकी अलविदाई दुआ 9-10 मुहर्रम को होगी, अलविदाई दुआ। रमजान में इस दफा एक सादत है, बहुत बड़ी सादत है, जो पहली दफा, आज तक पहली दफा हो रही। वो ये सादत है कि पूरे रमजान में नमाज फजर के बाद हल्का एक कशफुल महजूब होगा, मुसलसल होगा। पहले महीने के बाद होता था, इस दफा पूरे रमजान में नमाज फजर के बाद हल्का एक कशफुल महजूब होगा। ये बहुत बड़ी सादत है। और दूसरा यह है कि इंग्लिश मैगजीन अबकरी का आया है, उसको बहुत ज्यादा फैलाएं। और इंग्लिश हमारा चैनल है, उसको बहुत ज्यादा फैलाएं उसको। और रमजान में की मसरूफियत की बिना पर बंदिश लगवाने की चौथी किस्त मौकूफ हो गई है। इंशाल्लाह रमजान के बाद होगी, रमजान के बाद होगी। और रमजानुल मुबारक में बाद नमाज तराफी महफिल में रोजाना एक खास ताकतवर नक्श पुर कराया जाएगा जिंदगी के मसाइल और मुश्किलात में। और ये तस्बीह खाने में आने वाले नक्श जाफरानी स्याही से पुर करेंगे। और बैरून मुल्क के हजरात ये नक्श सोशल मीडिया पर जल्द डाल दिया जाएगा, आज कल में डाल दें हमारे जिम्मेदार हजरात। ये घुलने वाली स्याही से नक्श ऑनलाइन वो हमारे अमल में शामिल हो जाएंगे, अमल में शामिल हो जाएंगे। इसमें आजम का दम इंशाअल्लाह 11 मई बरोज एतवार बाद नमाज फजर तस्बीह खाने में होगा। इसमें आजम का दम का डब्बा पहले से लेके उसमें बहुत अमल होते हैं, वो उसको ले लिया करें। अबकरी रूहानी कार्टून बनाने का सिलसिला के जितनी पूरी दुनिया में हमारे मुखलिसीन हैं, वो हमारी टेलीनार के नंबर पे या ईमेल पे राब्ता करें। अक्सर टेलीनार के नंबर पे राब्ता करते हैं तो वो ब्लॉक हो जाता है, ईमेल पे राब्ता करें बहुत ज्यादा। और हमारी, मैंने अर्ज किया कि हर जो है वो जितने भी कार्टून बनाने वाले हैं उनसे मुसलसल हमारी टीम राब्ता करे। अगर मुसलसल हमारी टीम राब्ता नहीं कर रही तो उनको बार बार याद दहानी कराएं। हमारे जो अबकरी रूहानी कार्टून बनाने वाली टीम पूरी दुनिया में माशाअल्लाह उन्होंने काम शुरू कर दिया है। हजवेरी महल में चिल्लागाहों में ईंटें लग रही हैं। खुशकिस्मत होंगे जो रमजान में भी वहां कुछ देर की खिदमत, रमजान में भी वहां ये अमल जारी रहे, रमजान में भी इस अमल और ये खिदमत को से दूर न रहें। रमजान की बरकतों में भी ये अमल जारी रहे और इसमें कमी ना हो, अल्लाह के फजल से इसमें कमी ना हो। और 17 फरवरी से तस्बीह खाने में दौलत, उरूज, तरक्की, इज्जत, कामयाबियों के लिए चिल्ला शुरू हो गया है या वहाबों का। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, सुबह 9 से और शाम 5 बजे से इसमें शामिल हो। ये 17 फरवरी से चिल्ला है तस्बीह खाने में। बख्त, उरूज, बरकत, रहमत और खुशियों, खुशहालियों के लिए इसमें शामिल हों और 3 दिन यहाँ गुजारे तस्बीह खाने में। अब तो रमजान भी आ गया, अपने बख्त मुकद्दर को, नसीब को चमकाने के लिए जिंदगियां वक्त करें अपनी तस्बीह खाने में खिदमत और इबादत के लिए। और वरना चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, बूढ़े जवान सब अपनी जिंदगियां, वरना चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने वक्त करें यहाँ खिदमत और इबादत के लिए। पार्किंग में ताउन करें, ये रकम इदारे को नहीं जाती। कोशिश करें कि इस गलियों से बाहर पार्किंग, मुस्लिम गैर मुस्लिम सबके हकूक हैं, इस पे बहुत तवज्जो करें। बच्चों की हौसला अफजाई करें, बच्चे हमारे सरमाया हैं, तस्बीह खाने में आते हैं। खिलौने, टाफियां, बिस्किट वगैरह बच्चों को बहुत दिया करें, इनकी हौसला अफजाई करें और बहुत ज्यादा करें। और अबकरी यूट्यूब चैनल मुस्तकिल लोगों के मोबाइल पे सब्सक्राइब कराने का मिशन बना लें, मेहनत बना लें और बहुत तवज्जो से इसको करें। बाज लोग हमारी नावाकफियत की बुनियाद पे कहते हैं
کہ انگریز کو جادو جنات نظر بد نہیں ہوتا. ہم نے انگریزوں کی ہی کتابیں سینکڑوں اب تک افریقی سائٹ پر جمع کر لی ہیں جادوئی لائبریری کے نام پہ، اور واقعی انگریز مانتے ہیں کہ جادو جنات نظر بد ہوتا ہے اور ان کو اس کا کیا اثر ہوا، اس کا نقصان نفع کیا ہوا. عید کے تیسرے اور چوتھے دن حویلی میں سورت کوثر کا چلہ ہوتا ہے. پچھلے سال بھی ہوا. عید کے تیسرے اور چوتھے دن حویلی میں اپنے بستر کے ہمراہ حویلی آئیں. بس صرف 70 افراد آئیں کیونکہ وہاں زیادہ ترتیب نہیں ہے اور خواتین اور بچوں کو اجازت نہیں. خواتین کا بہت زیادہ اصرار ہے لیکن اس کی ترتیب نہیں بن پا رہی. وہاں قیام کے لیے آنا اصل نہیں، اصل تو وہاں قیام. اور تو اس لیے عید کے تیسرے اور چوتھے دن سورت کوثر کا چلہ پچھلے سال بھی ہوا. قرضوں، بیماریوں اور تونگری کے لیے، جادو کے لیے اور اللہ پاک کے خزانوں سے لینے کے لیے اس کی بڑی تاثیر ملی، بہت طاقت ملی، بہت دھیان ملا. اور وہ انشاءاللہ تعالی عید کے تیسرے اور چوتھے دن ہوگا. بارش کی وجہ سے لنگر چھت پر نہیں ہوگا، گیٹ پہ تقسیم ہوگا. خواتین کے تبرکات کی حال بھی نہیں کھلے گا. آج بارش کی وجہ سے تبرکات کا حال بھی نہیں کھلے گا اور مصافہ بھی نہیں ہوگا. آج اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور بہت زیادہ قبول فرمائے. بہت زیادہ رمضان یہاں گزاریں، بہت برکتیں، بہت خیریں، بہت عطائیں دنیا آخرت کی سارے. بیٹھ کے درود شفا میرے ساتھ پڑھیں گے اور یہ وہ درود شفا ہے جس میں بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، پریشانیاں، ناکامیاں، اس کا بہت زیادہ حل ہے اور بہت زیادہ حل ہے. جذبے سے میرے ساتھ پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اور سارے روزوں کے بعد صرف ایک اکیلا روزہ اور کہوں گا. کچھ بھی نہ ہو، میں تنہائیوں میں ہوں. کیا میری تنہائیاں بھی روزے دار ہیں؟ آج دوسرا روزہ ہے. دوسرے روزے میں مشق کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے سارے جسم کو روزے دار بنانا ہے، صرف پیٹ کو نہیں. بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے اللہ والو. بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں. آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، جذبوں کا روزہ، تنہائیوں کا روزہ، کیفیات کا روزہ، جذبات کا روزہ. ایک تو یہ انشاءاللہ ہم اس کی مشق کریں گے. ایک آج کی افطار میں ایک عمل شروع کریں گے اور وہ بہت زبردست عمل ہے اور اس عمل سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور حیرت انگیز برکت ہوگی. اور اس کو ہم نے 5 روزے میں مسلسل یہ عمل کرنا ہے. 5 روزے مسلسل یہ عمل کرنا ہے. 5 روزے مسلسل، یعنی دوسرا روزہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا. 6 روزوں تک یہ عمل ہم نے مسلسل کرنا ہے. اور اس عمل میں 3 مرادوں کو آپ ذہن میں رکھ لیں. کوئی 3 مرادیں ایسی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے ناممکن ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے بہت مشکل ہے. وہ ہے 7 سلام. قرآن پاک میں موجود ہے. سلام علی نوح فی العالمین، سلام قول من رب الرحیم، سلام حتی مطلع الفجر. 7 سلام قرآن میں موجود ہے. وہ 7 سلام آپ نے سامنے رکھ لینے ہیں پہلے سے، اور 7 سلام صرف 7 بار پڑھنے. یہ آپ کی اتنی حفاظت کا نظام، کتنی کفایت. پرانا بخار نہ جاتا ہو، کینسر پرانا ہو، ہیپاٹائٹس پرانا ہو، دل کے امراض، گھٹنوں کے امراض، معدے جگر کی کوئی بیماری ہے، اس کا تصور کر کے. اولاد بگڑی ہوئی ہے، شوہر بگڑا ہوا ہے، یا بیوی کے اندر غصہ بگاڑ ہے، کوئی بھی ہے، آپ سمجھتے ہیں پرانا جادو ہے، جنات اثرات بندشیں ہیں، اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ میں چاروں کونوں کو دیکھیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، 4 ہو گئے، اوپر نیچے 6 ہو گئے، اور باقی ایک سمت کون سی ہے؟ وہ سمت یہ ہے جو میرا خلا ہے، جس میں ہر وقت میں ساتھ رہتا ہوں. اگر یہ 7 سمتوں میں خیریں چاہنی ہیں، راحتیں چاہنی ہیں، رحمتیں چاہنی ہیں، عافیتیں چاہنا ہے، اور چاہتے ہیں کہ برکتوں کے دروازے، خیروں کے دروازے، رحمتوں کے دروازے، عطا کے دروازے، بخشش کے دروازے کھلے، یہ 7 سلام آپ نے پڑھنے ہیں.
7 सलाम, 7 बार पढ़ना है। 7 सलाम 7 बार। इसे पानी पे दम करके पी लें। एक बंदा पढ़े सारे घर को पिला दे, सारा घर पिए। बच्चे नहीं पढ़ सकते तो रोटी पे दम करके, जो खाना सामने पड़ा है सहरी के इफ्तारी के वक्त, वो दम करके सब खाएं। पानी सब पिए, खाना सब खाएं, यही दम करें। 7 सलाम। और 7 सलाम इसको आपने मुस्तकिल इसको पढ़ना है, नहीं छोड़ना। और इसको पहले से ज़हन नशीन रखना है कि 7 सलाम इसको पढ़ने हैं। और 7 सलाम वो होंगे जो आपकी जिंदगी में पहले से बरकतें और रहमत के दरवाजे खुलवाएंगे। यहाँ तक औलिया सुलहा और मुहद्दिसीन और अल्लाह के वलियों के तजर्बात में है कि जो बंदा 7 सलाम के साथ अल्लाह से दुआ करता है तो उसको फरिश्ते सलाम करते हैं, उसको अल्लाह की तरफ से सलाम आते हैं, उसको नेक रूहें सलाम करती हैं। यहाँ तक तो आया है। और फिर फरमाया सलामतियाँ 7 आसमान की और 7 ज़मीन की उसकी तरफ इतनी आती हैं कि 7 आसमान और ज़मीन की अगर बलाएं आएंगी, जो 7 सलाम पड़ेगा उसकी तरफ नहीं आएंगी। इतना ताकतवर अमल और इतना बाकमाल अमल है, ये ज़रूर कीजिएगा, बहुत कीजिएगा। और जितने दिन मैंने अर्ज किए हैं इसको मुस्तकिल अपनी ज़िंदगी का मामूल, यानी इन रोज़ों का मामूल बना लें। फ़ायदा भी होगा, नफ़ा भी होगा, बरकतें और खैरें भी होंगी और इंशाअल्लाह सलामती भी होगी। इसकी इजाज़त दे रहा हूँ। जब आप करेंगे फिर इसके नफ़े खुलेंगे, और वो खुलेंगे जो मैंने इजहार किया इससे भी कहीं ज़्यादा। और ताकतवर यकीन को पाना, और जितना ताकतवर यकीन होगा उतना उसकी बारगाह में बंदे की कीमत होगी। यकीन वाले की कीमत है। देखें उन आंखों ने आंखें वही थी, उन आंखों ने हुजूर को देखा तो हर दफा बेयकीनी, शक, वसवसे, बदगुमानी से देखा तो उन आंखों को लोगों ने अबू जहल की आंखें कहा। आंखें वही थी, उन आंखों ने हमेशा हुजूर को हसरत भरी, मोहब्बत भरी, अजमत भरी, अदब भरी नजरों से देखा तो उन आंखों को लोगों ने बिलाल की आंखें कहा। और कुछ आंखें वो भी हैं जिन्होंने खुद देखा ही नहीं, देखने को तरसते रहे। कईयां नो रोज होंदे ने दीदार आप दे, कोई रहंदे ने तरसते सरकार। वो आंखें बस देखा ही नहीं, वो तरसती रही। और उनके अंदर जलवा भी, जज्बे भी, अदब भी, कमाल भी, वजद भी, विजदान भी, और प्यास भी और मोहब्बत भी उन आंखों में थी। उन आंखों को ख्वाजा उवैस करनी की आंखें कहा। हाँ, उन आंखों को वो कहा। आंखें तो वही थी। एक आंखें वो हैं जिन्होंने बार बार देखा। मैं एक दफा मक्का मुकरमा के एक होटल में बैठा था। बहुत ऊंची होटल थी, गालिबन 50वीं मंजिल थी। पहाड़ भी बहुत बड़े बड़े नीचे थे। मैं ऐसे गौर से देखते सोचता लगा, इन पहाड़ों पे तो मेरे हुजूर चले होंगे, इन्हीं पहाड़ों पे हुजूर ने बकरियां चराई होंगी, इन पहाड़ों पे हुजूर के कदम मुबारक लगे होंगे, और इन्हीं पहाड़ों में पे अबू जहल भी होगा, दूसरे भी होंगे। पर अबू जहल ने हमेशा शक, वसवसे, बदगुमानी की नजर से देखा। आज दुनिया में गाली बन गया, और हालांकि मालदार था। असल उसका नाम अबू जहल नहीं था, उसका लकब था। असल लकब था अबुल हकम, नाम हिशाम था, अमर बिन हिशाम नाम तो ये था। और हिकमतों और दानाइयों का बादशाह था। इतना खूबसूरत था, उसके अशार के अशार उसकी शान में भरे हुए हैं। इतना रज सोना जवान था, और दराज का खूबसूरत। अकल की इंतहा ये थी कि उसका लकब था अबुल हकम, हिकमतों, दानाइयों, समझदारियों का बादशाह। बहुत मालदार था। बड़े बड़े मसले, सदियों पुरानी इंतकामी कार्रवाइयां, झगड़े ऐसे बैठ के सुलझा देता था। सब हंसते मुस्कुराते खुश होके जाते थे। इतना अक्लमंद था। और गज़वा बदर की सारी हिकमतें, बसीरतें, सारी दानाइयां
और जंग की सारी चीजें उसने की थी, पर उसकी नजरों में खोट था तो सारी दुनिया उसका नाम भी भूल गई, अमर इब्न हिशाम। सारी दुनिया उसका लक़ब भी भूल गई, अबुल हकम। पर सारी दुनिया को आज मैं कहूं अबुल हकम एक बंदा था, अमर इब्न हिशाम एक बंदा, चुप करके बैठे रहेंगे। आप कहेंगे हाँ ठीक कहता है, पता तो है नहीं हमें, और मैं फौरन कहता हूं अबू जहल है, आप कहते हैं हाँ। बचपन से 55 तक सुना ही अबू जहल है, अमर इब्न हिशाम तो सुना ही नहीं, अबुल हकम सुना ही नहीं, दानाओं का दाना सुना ही नहीं, समझदारों का समझदार सुना ही नहीं, तो सुना ही नहीं। क्यों? वो लक़ब मिट गया। मैं बदर के उस कुएं के पास गया, मैं बदर में गया तो वो कुआं आप बंद कर दिया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दफा तशरीफ ले गए तो वो एक वीरान कुआं था जिसमें वो मुशरिकीन की लाशें डाली थी। हुजूर ने खड़े होके उन सबको मुखातिब किया था। मिट गए, खत्म हो गए। यकीन की दुनिया से इस वजीफे को, ताकत की दुनिया से सूरत इखलास को, ताकत की दुनिया और यकीन की दुनिया क्या होती है? ये फिर कदम उठवाती है, मंजिलें तय करवाती है। आज जो मैंने रोंगटे खड़े कर देने वाला अमल मुख्तसर बताया, आज मैंने 2 तस्बीह बताई है पढ़ के बे औलादों के लिए। 2 तस्बीह पढ़ के औलाद है तो उसकी तरबियत तालीम के लिए उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और एक और भूल गया, 2 तस्बीह पढ़ के उन अंबिया कराम को जो बादशाह भी थे, अंबिया भी थे, मालदार भी थे, अंबिया भी थे। हाँ, वो कौन थे? हजरत दाऊद और हजरत यूसुफ और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये 3 नबी थे जो बादशाह भी थे। और अल्लाह ने दिखाया। ख्याल करना, अगर कहीं दौलत माल रिस्क हलाल की शक्ल में आया है तो ये ना कहना कि ये फकीरी का नाम तो सिर्फ पैमंद लगे कपड़ों का नाम है, झोपड़ियों में रहने का नाम है। एतराज ना कर बैठना। उनको अगर ये 2 तस्बीह पढ़ के हदिया करें, गौर से सुनिएगा, उनको ये 2 तस्बीह पढ़ के अगर हदिया करें, मालदार अंबिया कराम को अल्लाह पाक इसको सरबत माल खुशहाली अता फरमाता है। अगर उन हजरात को ये हदिया करें तो कायनात के राज हैं, ये बरकतों के दरवाजे हैं। वलिल्लाहि खज़ाइनु समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान के खजानों के दरवाजे हैं। ये बरकतों और अताओं की खास और खास नेमत है जो किसी को अगर मिल जाए और किसी को अगर अता हो जाए और कोई खुशकिस्मत इसको अपने सीने में समो ले। और एक चीज और बताऊं, ये जो अमल मैंने बताया ना किसका, ये रोंगटे खड़े कर देने वाला अमल अल्लाह समद का, तारीख में यहां तक आता है कि जब एक अल्लाह वाले थे, उनका कल्ब जारी हो गया था, उनकी आंखों से अल्लाह ने पर्दे हटा दिए थे। जैसे मैंने अर्ज किया, फरिश्ते अल्लाह ने आंखें रखी ना, पर्दे रखे हैं। अल्लाह चाहे फरिश्तों को देखने के लिए पर्दे हटा ले, जिन्नात को अल्लाह ने ओझल किए हैं, अल्लाह चाहे तो जिन्नात के लिए पर्दे हटा दे। फिर ऐसे दुर्वेश थे जिनके सामने खजाने खुले हुए होते। ये हमारे यहाँ मामू कांजन में सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अल्लाह वाले होते थे। सन 73-74 में उनका विसाल है, 50 साल तकरीबन। तो उनके पास आए, उन्होंने कहा हजरत सारा लंगर खत्म हो गया, हर चीज खत्म हो गई और तनख्वाहें देनी है, लंगर नहीं है और बहुत हालात खराब हैं। तो हजरत ने फरमाया, अच्छा मुझे ऐसा करो, मुझे कुछ दिन दे दो। तो फिर अल्लाह वाले थे, यकीन के साथ सूरत फातिहा पढ़नी शुरू कर दी। यकीन के साथ सूरत फातिहा। एक दुर्वेश थे सुलेमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मुझे बताया, यकीन के साथ सूरत फातिहा करनी शुरू कर दी। बस दिन रात सूरत फातिहा। वो अल्लाह से बातें करते थे। एक दफा मुझे बताया, यहां मुरीद के मैं गया, एक
शाह साहब थे, उनके यहाँ मैं लाइब्रेरी की मेरा दिल कहने लगे हमारे अब्बा जी के पास आए, मेरे अब्बा जी ने कहा औलाद नहीं है, कहा तहज्जुद में आना, अल्लाह ने कहा जैसे बच्चे ना एड़ियां रगड़ते जुबान हैं, को कबूल कर लिया है, एड़ियां रगड़ रगड़ के, ना छोड़ना, एड़ियां रगड़ रगड़ के अल्लाह से कहते थे अल्लाह दिल पाक भी दे दे। कबूल हो जाएगा। एक दफा एक भैंस के वक्त बारे में आएगा, गए तो भैंस उन्होंने कहा दिल हजरत ये भी भैंस जो है कबूल हो ये जाएगा। सारे कट्टे ही देते, इस कटियां ही जुबान वाले जिक्र को आपने उस पे ना हाथ छोड़। रख के कहा दे दे, वक्त आएगा, जितनी दफा दिल हाथ भी रखा कबूल हो कहा कि मेरे वालिद रात को बैठे थे इसको तो ना छोड़। ऐसे घुटने पे हार मार इसको अल्लाह ना बेटे छोड़। दे, आखिर मेरे बाप ने हाथ पकड़ लिया, हकीकत जितने कह रहा हूं। मारे हाथ उतने बेटे हुए। मैंने उससे कहा कि एक ऐसा काम कर, तन्हाई में बैठ, और तन्हाई में बैठ के ना बस सिर्फ तू हो, अल्लाह हो, बंदा हो, तन्हाई में बैठ, और तन्हाई में बैठकर, तन्हाई में बैठकर आपने जिक्र करना, तन्हाई में बैठकर आपने जिक्र करना, तन्हाई में बैठकर, और अल्लाह समद की ज़रबे लगानी है दिल पे, दिल पे, दिल पे। पढ़नी सिर्फ एक दफा सूरत इखलास है, और जब देखे ना रोंगटे खड़े हो गए हैं और अंग अंग में से आंसू बहना शुरू हुए हैं, आंखों से, आंसू से, और दिल से, और कैफियत से हर जिस्म का हिस्सा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गया है। हर दिल का हिस्सा, हर जिस्म का हिस्सा, हर रग 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 अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गई है। तो फिर अल्लाह के साथ ताल्लुक बना और अपनी मुराद, अपनी आस, अपनी उम्मीद अल्लाह के सामने पेश कर। अपनी मुराद, अपनी आस, अपनी उम्मीद अल्लाह के सामने पेश कर, और अल्लाह समद को दोहरा 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 दोहरा। ये जो जंगलों में कहते हैं चिल्ला किया फलां बाबा जी ने, पहाड़ों की गारों में चिल्ला किया फलां बाबा जी ने, कुओं के अंदर चिल्ला किया, अभी भी ऐसे कुएं मौजूद हैं जिसके नीचे उतर के पानी भरते थे, उसको हमारे बर्रे सगीर की जबान में बावली कहते हैं। उसमें नीचे जाके पानी भरते थे। मैंने बुखारा के अंदर देखा और कई जगह देखा, ठट्ठा में भी अभी वो हैं, ठट्ठा में, लेकिन खुश्क हो चुके हैं, नीचे जाके पानी भरना। उन कुओं की गहराइयों में जाके, तन्हाइयों में बह के, खुश कुओं में अल्लाह समद और जिक्र। उसकी वजह अंदर तन्हाइयों में। या फिर क्या किया, कहा कि रोई को थोड़ा सा गीला कर और पीसी हुई काली मिर्चें उसमें मिला और कानों में डाल कि कोई आवाज कानों तक ना पहुंचे। मेरी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह के पास तोता था, तो उस तोते को कलमा पढ़ाती थी। रात को पढ़ा पढ़ा के ना उसके कानों पे मोम लगा देती थी। मैंने खुद देखा, कानों पे मोम लगा देती थी कि सारी रात इसके कानों में, सारी रात इसके कानों में और कोई आवाज ना जाए। जाग रहे, और कोई आवाज ना जाए। अच्छा, ऐसा करते रहे करते रहे। मैंने खुद देखा कुछ अरसे के बाद उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे ही हम अगर मश्क कर, जानवर की मश्क हो जाए तो उसको कलमा जुबान पे आ जाता है। अगर हम कभी भी किसी जंगल वीराने में, कभी घर की तन्हाइयों में, कभी कहीं भी एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़े और एक दफा सूरत इखलास पढ़े और एक दफा सूरत इखलास पढ़े, लेकिन अल्लाह समद को बहुत ज्यादा दोहरा। असल में अल्लाह में नुक्ता नहीं, समद में नुक्ता नहीं। ये हरूफ सवामित है, ये बेनुक्ता हरूफ है, और इन बेनुक्ता हरूफ में बहुत ताकत भी है, बहुत तासीर भी है, बहुत कमाल भी है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। आप इस वजीफे को उठाएं, इसमें जरा चुने कि बेनुक्ता हरूफ कितने हैं। आपको हैरत होगी, और आपको हैरत होगी कि अच्छा ये क्या है।
जो तबीब कामिल हो जाता है ना, याद रखिएगा, जो हकीम पुख्ताकार हो जाता है, जो डॉक्टर पुख्ता हो जाता है, वो किसी का नुस्खा देखते ही ना एक पल में दवाएं देखता है और दवाएं पढ़ता है, कहते बस इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दे बाकी ठीक है, या कहते हैं नहीं तब्दील ना करें यही ठीक है। उसे पता है ये इस जिस्म के मुताबिक, इस बीमारी के मुताबिक ये ऐन सेहत है, ऐन तंदुरुस्ती है। इसी तरह जो वज़ाइफ की दुनिया का बंदा होता है और उसको वज़ाइफ की दुनिया में पुख्तगी मिल जाए तो वो भी एक पल में वजीफे के अंदर की ताकत देखता है कि इसमें हरूफ आतशी कितने हैं, खाकी कितने हैं, आबी कितने हैं, बादी कितने हैं, सवामत कितने हैं, कमरी कितने हैं, शमशी कितने हैं, और इसके अंदर वो हरूफ कितने हैं जो नूरी हैं, वो कितने हैं। एक पल के अंदर उससे वजीफे की ताकत और तासीर, और एक पल के अंदर उसके कमालात उसके अंदर खुल जाते हैं। अनदेखा जहान है, लाहूत मलाकूत का जहान है। एक साहबी हज़रत मुआज़ बिन जबल रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि जिंदगी महदूद है, इल्म ला महदूद है। उन्हीं का फरमान, शायद उन्हीं का फरमान है कि जिंदगी महदूद है, इल्म ला महदूद। तो जो इल्म ला महदूद है उसको हम अपनी अकल से समझने की कोशिश करें, अपने शऊर से समझने की कोशिश करें, अपने एहसास और इदराक से समझने की कोशिश करें तो नहीं समझ सकते। इल्म है ही ला महदूद, उसकी हद नहीं है। कभी अगर आप रोंगटे खड़े कर देने वाले अमल को चाहे ना तो बैठ के इसकी मश्क कर लें। दूसरी या तीसरी मश्क के अंदर आपको तवज्जुहात मिल जाएंगी, एक पल में विजदान मिल जाएगा। आप हैरान होंगे ये क्या हुआ, इतना जल्द मुझे तवज्जो मिल गई। सारी उम्र मैं बड़ी बड़ी दुआएं मांगता रहा, कभी तवज्जो ना मिली, कभी क्या ना मिली, तवज्जो ना मिली, और पल के अंदर इतनी मुझे तवज्जो मिल गई। आप हैरान हो जाए। अल्लाहु सम्मद। जब इसको इंसान विजदान से और पूरे दर्द से और पूरे गम से और पूरे दर्द से बंदा इसको दोहराता है, इसके अंदर जितने भी हुरूफ हैं वो सारे वो हुरूफ हैं जो अल्लाह के खास ताल्लुक के और खास तवज्जो के और खास ध्यान के, और उसके अंदर खासुल खास ताकत है। ये वो हुरूफ है, ये वो हुरूफ है। और वैसे भी सूरत इखलास अगर आप देखें तो सूरत इखलास तो जन्नत में ले जाने का नुस्खा है, और जन्नत में ले जाने का एक बेहतरीन रास्ता है। और सूरत इखलास वो है जो तराजू को भर दे, सूरत इखलास वो है जो कब्र को रोशन कर दे, और सूरत इखलास से कलमा नसीब हो जाए, और सूरत इखलास से मोहब्बत और अल्लाह उसके हबीब की मिल जाए, और सूरत इखलास से पुल सरात के रास्ते आसान हो जाए, और सूरत इखलास से अल्लाह का नूर नसीब हो जाए, और सूरत इखलास से सीना रहमत बरकत और नूर से भर जाए। अनदेखे सौदे हैं, अनदेखा निजाम है, इंसान को बाजों का समझ नहीं आती। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल में से एक नबी गुजरे, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, और अल्लाह के इतने बड़े नबी थे। कुरान में जो 7 सलाम आए हैं तो उनमें एक सलाम है सलामुन अला इलियासीन, एक सलाम है सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, एक सलाम है सलामुन है हत्ता मतलाइल फज्र, एक सलाम है सलामुन कौलन मिन रब्बिर। तो वो हजरत इलियास जो थे, हजरत इलियास ये एक ऐसे बादशाह के यहां आए जिन्होंने एक बहुत बड़ा माबद खाना हैकल बनाया हुआ था, बहुत बड़ा माबद खाना बनाया हुआ, और बहुत ताकतवर बादशाह था, बहुत ताकतवर बादशाह था। और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने वहां आके अल्लाह के बंदों को अल्लाह की आप इबादत, अल्लाह की परस्तिश,
कुरान में उनका तस्करा है, हदीस में उनका तस्करा है और बहुत ज्यादा तस्करा है, हत्ता कि लोग उनके दुश्मन हो गए। और आप एक गार में, एक पहाड़ में गए, पहाड़ का नाम था दम, अल-दम पहाड़ का नाम था। जब पहाड़ के करीब गए तो पहाड़ अचानक खुला और उसके अंदर गार मौजूद थी, गार बनी। और एक रिवायत में थोड़ा अरसा और एक रिवायत में 10 साल तक आपने उस गार में पनाह ली। आप जो एक लफ्ज अक्सर सुनते हैं ना, यकदम, यकदम, ये दम उस गार का नाम था, उस पहाड़ का नाम था, उस गार और पहाड़ का नाम था। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में एक बात अजीब है जो रिवायात में लिखी है मुहद्दिसीन ने। फरमाया कि वो अल्लाह के बंदे थे, जब भी कोई शेर भूखा होता था वो आपके पास आता था, आपके तलवे चाटता था। अल्लाह पाक शेर को आपके तलवे से ग़िज़ाएं अता करता था और वो भूखा और बास। और ये भी रिवायत है कि बूढ़ा शेर शिकार नहीं कर सकता, बूढ़ा शेर शिकार नहीं कर सकता। बूढ़ा शेर आता था, आपके तलवे चाटता था। और फरमाया फिर बाज़ औक़ात शेर आता तो आप कहते थे, तेरा लुआब नापाक है, मेरे पास पानी नहीं है कि बाद में मैं अपना पाँव धो के इबादत करूं, तो अभी ना आ, पानी का इंतजाम होने दे। तो पानी तो चश्मों में होता था। अब वो भूखा शेर बैठ जाता था, मैं जब पानी का इंतजाम होता था पर मैं आके चाट ले, अल्लाह ने तेरी ग़िज़ा यहां रखी है, अल्लाह ने तेरी ग़िज़ा यहां रखी है। और फिर आपके तलवे चाट के वो बूढ़ा शेर सैराब हो जाता था। एक यहां तक लिखा है कि आपके तलवों से घी और शहद से मिला हुआ ऐसा लुआब निकलता था जो बूढ़े शेर लेते थे और जवान हो जाते थे और उनका पेट भर जाता था। कुदरत का निजाम है, उनको दरिंदे कुछ नहीं कहते थे। एक गैबी निजाम है जो हमारे सामने मौजूद है। जरूरी नहीं कि हर गैबी निजाम हमारे सामने खुल जाए और हर गैबी निजाम की हमें खबर हो जाए, जरूरी नहीं है। कुछ गैबी निजाम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक लाहौत और मलाकुत से होता है। यही गैबी निजाम इस नक्श और तावीज के साथ है, इस नक्श और तावीज के साथ है। आए मैं आपको इस नक्श की तावीज का एक चिल्ला बताता हूं, एक ज़कात बताता हूं, जिसको चिल्ला भी कहते हैं, उसको ज़कात भी कहते हैं। एक ज़कात वो है जो हम अपने माल की निकालते हैं, वो ना एक अमलियात तावीज़ात की दुनिया में एक लफ्ज है, उसको ज़कात कहते हैं। और उस दूसरे लफ्जों में उसको चिल्ला भी कहते हैं। वो नक्श, वो चिल्ला, अगर कोई शख्स इस नक्श को 1.25 लाख दफा लिख ले, मैंने कई नक्श लिखे हैं इससे पहले, अगर कोई लिख ले 1.25 लाख दफा, घुलने वाली स्याही से हमेशा लिखे। एक बड़ा सा कागज ले ले, लंबा सा कागज, लंबे लंबे कागज ना बाजार में मिलते हैं, ये अक्सर बिल बनाने वाले, कच्चे बिल बनाने वाले, उनको कागज होते हैं, कटे हुए मिलते हैं, कटे हुए, उस पे लिखता जाए, रोज जितना भी लिख ले, जितना भी लिखता जाए। फिर उसको काट के हर नक्श के अलहदा आटे में गोली बनाए, आटे में लपेट के उसमें आटे का गोला सा छोटा सा बना के उसको समंदर में, दरिया में, नहर में, जहां मछलियां हो, गंदा पानी ना हो, वहां डालता जाए। अगर कोई कुछ अरसा ये कर ले